everyone and welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and today's video is going to be very special because I'm going to reply to each one of your comments, as I was getting a lot of DMs in my Instagram as well as in my YouTube, but I was able to reply काफ़ी कम, but yeah, and also thanks a lot because मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ, I feel like a family right now with you all. I feel a connection because whenever I post a video, you all are so enthusiastic to reply and to comment down. Before that, I would love to give a little introduction of mine. So I'm Nikita Mehra and I'm doing BFT, which is Bachelor's in Fashion Technology, and which is also known as Apparel Production from NIFT Mumbai, and I will be going in my third year abhi July ke baad. So yeah, let's get into the video. In this video, I'm going to reply aapke sare comments. So we'll open one by one, and by the way, congratulations to each one of you, those who have got your dream college. But yeah, these are the comments which I am getting on the regular basis कि अब हमें क्या करना चाहिए, after the second round हमें क्या करना चाहिए, the third round हमें क्या करना चाहिए. One person has commented कि उसका rank 5400 है in open category, so which campus will he get? So according to me, see, you have to do a hit and trial method because 3 rounds of counselings are over, right? And only some are left. You can even try in the spot round of counselling, which would be very helpful for you. And also some people were asking कि if इस seat में, if इस round में हम लोगों ने fees pay कर दी है, तो क्या next round में भी हमें fees pay करनी है? No, you don't have to pay another fees if you put on the floating option. Your fees would be automatically adjusted between the two campuses. For example, in first round you have got Delhi, and in the next round you got Mumbai, and Delhi mein you already paid the fees. You don't have to pay the fees again in the Mumbai campus. They'll automatically adjust your fee. अभी ही recently में I got a DM on my Instagram of a person saying कि उसका rank 9000 से ज़्यादा है, and also he was belonging to a general category, and he was asking कि उसे इस counselling में 2024 में कोई सीट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. And also there are people जो बहुत ज़्यादा particular होते हैं अपने dream college को लेके, right? If they want Mumbai, they want Mumbai. If they want Delhi, they want Delhi. They won't settle for any other campus because of the placement criteria and also for the exposure thing. So if you are a design undergraduate aspirant and also you're preparing for the exams like NIFT and NID, but you are struggling, constant struggling, you know, of like you want a regular feedbacks on your drawings and creative work, then look no further. तो फिजिक्स वाला डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर लेके आ गया है कोर्सेज ऑफ डिज़ाइन आइकॉनिक 2025 बैच एंड डिज़ाइन आइकॉनिक प्रो 2025 बैच. अब हम देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल जो अभी निफ्ट एस्पिरेंट होने वाले हैं, एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू गिव री एग्जाम्स, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्लासमेट जो ये री एग्जाम देखे भी निफ्ट में आते हैं. And let's see what are they offering. Design Iconic batch में you will get top-notch faculties, live recorded lectures, personalized feedbacks on your drawings, brush up courses and drawing classes, 3000 plus question bank, and also 10 full-length mock papers, you guys. This is a lot which they are offering. Talking about the Design Iconic Pro 2025 batch, इसमें आपको सारे के सारे डिज़ाइन आइकॉनिक बैच के फीचर्स मिलेंगे, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू द अपकमिंग डिज़ाइन कोर्सेज ऑफ 2025, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द निड एंड निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम्स आपको 6 अदर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको इसमें प्रिपेयर किया जाएगा. And let's get some insights on the prices in which they are available. Design Iconic Batch आपको available होने वाला है 4999 में, and Design Iconic Pro Batch आपको available होने वाला है 6999 में. And if you will be using my coupon code जो आपकी स्क्रीन पर भी available होगा, आपको further 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी इस पर मिलेगा. So don't wait and enroll right now. Link is in the description. Now moving on to some different comments जो कि मेरे recently videos में हुए थे. So the one comment is, hi, does BFT students require stationeries like BDES students? I got to know from many sources that BDES students need a lot of pastel sheets, sketchbooks and many more. I would hope you to reply. Yes, definitely I would reply. I love to reply to some unique and different comments and which are actually like you know worth knowing. So मैं आपको बता देती हूँ कि BFT में स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, बट काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती है BDES को अगर आप कंपेयर करेंगे तो. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ईयर यू विल बी रिक्वायरिंग अ हैंडफुल ऑफ रूल शीट्स, ब्लैंक शीट्स लेके आना, 2-4 फाइल्स लेके आना, पेस्टल शीट्स का पैकेट लेके आना, ब्रिंग सम 2-3 कलर पेन्स. 2-3 कलर पेन्स इज मोर देन इनफ. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द मैगजीन्स, बिकॉज इन योर सेकेंड सेमेस्टर आई गेस देर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज फैशन ओरिएंटेशन, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग डायरीज बनानी पड़ेगी. एंड इन योर फर्स्ट ईयर ऑल्सो यू विल बी रिक्वायरिंग विद वन लर्निंग डायरी
तो लर्निंग डायरी अब क्या होती है, लर्निंग डायरी इज बेसिकली अ स्पाइरल कॉपी ऑफ A2 साइज और A3 साइज और A4 साइज। वो मत लेके आना बिकॉज अभी आपको फैकल्टीज बताएंगे किस साइज में दे वांट इट। एंड ऑल्सो दे विल बी रिक्वायरिंग सम ऑफ द सम डेकोरेटिव थिंग्स, सम पेन्स, some glue sticks, that's it, some decorative tapes। ज़्यादा कुछ वो लोग नहीं मांगते BFT के लोग। एंड ऑल्सो इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर यही ज़रूरत पड़ती है। एंड इन द थर्ड एंड द फोर्थ सेमेस्टर यू विल बी रिक्वायरिंग a lot of muslin and a lot of different types of fabrics। तो मसलिन का रेट अभी हमारे कैंपस में मुंबई में इट्स लाइक 60 पर मीटर, एंड पर मीटर से कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट मैंने अभी तक 10 तो बहुत कम बोल रही हूँ मैं, लाइक हमने बहुत ज़्यादा मीटर्स यूज़ कर लिया होगा, लाइक 50 तो कर ही लिया होगा भाई, बोलने वाली बात है बिकॉज लग जाता है इतना। बहुत स्लीव्स करनी होती है, कॉलर्स करना होता है, बॉर्डर्स करना होता है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। सो उसमें लगता है, एंड वो आप कैंपस से ही लेना या फिर अब जब आप सेकेंड ईयर के ब्रेक में घर जाएंगे आप तब ले सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि BFT में लैपटॉप की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। बच्चे नहीं लेके आते फर्स्ट सेमेस्टर में, तो लैपटॉप्स लैब्स हैं वहाँ पे मस्त, आपका मैक के आपके पास डेस्कटॉप्स होंगे, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट येस, इफ़ यू वांट टू गेट अ लैपटॉप फॉर योर सेल्फ, डू गेट इट। एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट अ गेमिंग लैपटॉप। आई हैड अ गेमिंग लैपटॉप बट उसमें कुछ हुआ नहीं, ठीक है। सो नॉर्मल लैपटॉप वुड ऑल्सो वर्क, एंड जस्ट गेट अ नॉर्मल लैपटॉप, लाइक जस्ट अ नॉर्मल लैपटॉप, एंड इट शुड हैव अ गुड ग्राफिक्स कार्ड। इफ़ यू वांट सम डिटेल्स आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन कि कौन सा लैपटॉप को लेना चाहिए। डोंट गो फॉर लाइक extreme ones because BFT doesn't want you to do some illustrations and stuff, so you can get a normal laptop. And the next comment, this comment I found it really interesting. The one girl has asked कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसे ही क्या इसमें फर्स्ट ईयर में सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाएंगे एंड सब कुछ पढ़ाएंगे। सो द आंसर टू इट इज़ BFT वाले इसमें बच जाते हैं, ठीक है। BFT पीपल डू नॉट सिट विद BDS पीपल, दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स, दे हैव देयर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, दे लर्न HTML इन द फर्स्ट सेम। बट BDS के जो सारे बच्चे होते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के, FD, AD, TD, KD एंड FC सब साथ में बैठते हैं, सबको मिक्स कर दिया जाता है, शफल कर दिया जाता है, डिफरेंट आपके बैचेस बनते हैं उसमें, एंड उसमें आप लोगों को एक ही चीज़ वापस पढ़ाई जाती है। मतलब बेसिकली मैंने सुना है मेरे फ्रेंड से कि उनको वापस स्केचिंग ड्राइंग ही सिखाई जाती है। देयर इज नथिंग डिफरेंट विच दे लर्न, बट येस इट इज़ अ फाउंडेशन ईयर विच इज़ कॉल्ड अ फाउंडेशन प्रोग्राम। एंड फाउंडेशन ईयर में सब कुछ एक साथ ही पढ़ाया जाता है ताकि आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से और केपेबल हो जाएं उन चीज़ों को समझने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्स कि जिसमें किसी और ने भी रिप्लाई किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया है। किसी ने लिखा था कि FD में प्लेसमेंट्स का रिजल्ट कैसा होता है। मैंने सुना है ज़्यादा अच्छा नहीं होता और बाकी लोगों को ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। मतलब जस्ट गिविंग अ शॉट ऑफ इट द पर्सन हैज़ टाइप। सी द थिंग इज़ कि पहली बात बहुत अलग अलग कैंपस की अलग अलग स्टोरीज होती हैं, लाइक एंड एक ही बैच में बहुत बच्चे होते हैं, सबके डिफरेंट ओपिनियंस निकलते हैं प्लेसमेंट को लेके। सो मैंने जहाँ तक किया है, बिकॉज आई हैव डन मॉडलिंग फॉर माई सीनियर्स जो FD में थे, लाइक फोर्थ ईयर के मैंने किया है, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑल्सो आई डिड इट। तो मुझे क्या पता चला उन लोगों से कि मोस्टली जितने लोग होते हैं FD जो करते हैं, वो पहली बात इसीलिए करते हैं कि उनको अपना लेबल खोलना होता है, ठीक है, उसीलिए उनको सीखना होता है। तो वो या फिर वो खुद लेबल अपना खोलते हैं तो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, या फिर वो पहले से ही जब इंटर्नशिप कर रहे थे थर्ड फोर्थ ईयर में, वो पहले से ही किसी बिग लेबल्स और ब्रांड्स के नीचे अप्लाई कर चुके होते हैं। मसाबा के नीचे काफ़ी लोग अप्लाई कर चुके होते हैं, एंड आपके बहुत सारे मुंबई में तो बहुत सारे लेबल्स हैं, उनके अंडर वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं कि हमारी डिग्री खत्म होते हैं हम वहाँ काम करने आ जाएंगे। सो दे डोंट सिट एक्चुअली फॉर प्लेसमेंट्स, बट येस देयर आर मेनी पीपल जो बैठते होंगे। तो इसका मुझे इतना ही अपने अकॉर्डिंगली समझ आया, तो मैं आपको इतना ही बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठे। एंड मैंने तो काफ़ी ज़्यादा सुना है कि FC की प्लेसमेंट अच्छी होती है, TD की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है। एंड अबाउट FD दिस इज़ द ओनली थिंग, बिकॉज FD इज़ अ थिंग कि जिसमें आप खुद से ही अपना लेबल खोलते हैं। मैंने तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका सुना वही करते हैं, एंड आधे से ज़्यादा लोग अब इसमें मास्टर्स भी करते हैं ताकि उन्हें और अच्छा हेल्प हो अपने लेबल खोलने में। So yeah guys, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so that whenever I post new content you guys get notified first. And also if you want to know more about hostel, my next video is going to be about the whole hostel details and how you need to apply for your hostels. So yeah, till then, bye bye and thanks for watching.